Okay, so we are going to see some basic problems in game theory. Now, just look at this question. This is my question. Okay, I need to solve this question. What you have to do at the start is, I'll just put it for you. A, okay, what is the value? 16, 4, 0, 14, minus 2. Okay, next is 10, 8, 6, 10, 12. Next is 2, 6, 4, 8, 14. Next is 8, 10, 2, 2, 0. Now this matrix is called as which matrix? Payoff matrix. I have already informed you. This is payoff matrix, first of all. Second, these are the strategies 1, 2, 3, 4. Suppose I want to name it A1, A2, A3, A4. These are the strategies that will be played by A. Correct? Now, suppose there is another player B. Now you can see these are the strategies B1, B2, B3, B4, B5. So this will be the strategy B1, B2, B3, B4, and B5. Now, is this a 2x2 game? No. This is 4x5 game. Correct? This is a 4x5 game. Okay. So this is M by N game. This does not mean that this is not a pure game. I've already told you what happens in pure game. You get a saddle point. Okay. And if you don't get if you're not getting the saddle point, this is not a pure game. It is having mixed strategy. So what you have to do first thing in the any problem that you get now, first thing is you have to look out for the saddle point. Now, how do you look out for the saddle point? I'll just put it for you. See, here what I'll do, I'll try to find minimum of the row. Okay, I will try to find minimum of the row. Okay, for A1, what is the minimum of A1? What is the minimum? -2. Correct? 0 is less, but -2 is more less than 0. So for A2, what is the minimum? 10, 8, 6, 10, 12. So what is the minimum? 6. Now, what is the minimum for A3? 2, 6, 4, 8, 14. So what will be the minimum? 2. Now what is the minimum here? The minimum is 0. Now you will say, why should I take the minimum? देखो, तुम्हारी तो ख्वाहिश रहेगी कि तुम मैक्सिमम कमा लो. अगर तुमको इसमें से कुछ सेलेक्ट करना रहा है, just change. I don't want to change the color because what happens is it becomes a little difficult, but still I'll change it. Okay, what I'm saying, देखो तुम्हारी तो ख्वाहिश रहेगी अगर मुझे इसमें से कोई स्ट्रेटेजी चलना है तो मैं 16 रुपए वाली चलूं, बराबर. बट बी क्या चाहेगा? बी की क्या ख्वाहिश रहेगी? तुम कम से कम चलो. तो तुम्हारी ख्वाहिश तो 16 की रहेगी. करेक्ट ना? अगर तुम इसमें से कुछ चलना चाहोगे 16 चलने चाहोगे, बट बी क्या बोलेगा? नहीं, माइनस में चलो. सबसे कम जो चला सकता है बी कोशिश करेगा माइनस. तो बुरी से बुरी हालत में तुमको कितना मिलेगा? -2 मिलेगा. करेक्ट? अगर तुम यहां पे मैक्सिमम चलना चाहते हो 12 और बी क्या बोलेगा? नहीं, 12 क्यों चलने दूं? तुम 6 की कोशिश करेगा. तो तुम क्या बोलोगे? ठीक है, मुझे बुरी से बुरी कंडीशन में यहाँ पे कितना मिलने वाला है वो मैं चेक करता हूँ. तो यहाँ पे मुझे -2 मिल सकता है, यहाँ 6 मिल सकता है, यहाँ पे 2 मिल सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता. Okay, now similarly, just give me a second. Similarly, what I'm saying is, now I will check for maximum. Just listen to what I'm saying. Now just look at this thing what I'm saying. Now what I'm saying, these are the values. ठीक है, 16, 10, 2, 8. Correct? Now what I'm saying, यहाँ पे मैं एग्री कर लिया कि मेरा क्या हो? मिनिमम हो. करेक्ट ना? यहाँ पे हम दोनों का क्या हो? मिनिमम हो. अगर क्योंकि गौर करें तो दोनों को मिनिमम, यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम -2 किसको मिल रहा है? A1 को -2 मिल रहा है, तो B को कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ इस साइड से कॉलम में. तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16. करेक्ट? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16. जस्ट लुक एट द थिंग व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10. यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6. यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14. और यहाँ पर भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14. ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चल गया और यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू चल गया? क्योंकि जब अगर मैं ध्यान दो तो ये दोनों वैल्यू है किसके लिए? गौर करो ना, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम चल कौन रहा है? ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? किसके रिस्पेक्ट में लिखी है इसमें वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में लिखी है? ए के रिस्पेक्ट में. करेक्ट? तो जब वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में लिखी है तो दोनों साइड में एक ही कंडीशंस लिख रहा हूं. यहाँ पे मैं क्या कोशिश करूंगा? यहाँ पे जब मैं चलूंगा तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? मिनिमम चलता हूं. और यहाँ पे जब मैं कोशिश करूंगा तो क्या चलूंगा? मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉलम वाइज. तो देखो, मुझे मैक्सिमम मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया? मिनिमम. अब अगर मैं बोलता हूँ, जस्ट लुक एट दिस थिंग, आई थिंक देयर इज समवन, या व्हाट आई एम सेइंग,
अगर मुझे फाइंड करना है मैक्सिमिन, जस्ट लिसन, मैक्सिमिन का मतलब क्या होगा? मैक्सिमिन आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, मैक्सिमिन। मैक्सिमिन मींस, मैक्सिमिन का मतलब है मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। ओके, what I'm saying, maximum is what? Maximum is maximum of the minimum. So what is the maximum of this minimum? What is the maximum? 6, correct? ठीक है, and now look at this value. If I want to look at this thing, this is maximum. So what I can actually do is I can actually find only minimax. What do you mean by minimax? Minimum of the maximum. देखो यहां पर मैं maximum of the minimum चल लिया, क्योंकि यहां पे किसकी चल रही थी बात? किसकी बात चल रही थी? बात किसकी चल रही थी? बी की बात को मैंने एग्री किया, ठीक है। तो जब मैंने बी की बात को एग्री किया तो मैंने क्या ले लिया? मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम ले लिया, क्योंकि अब मुझे ये कंडीशंस मिल गई ना, मुझे एक्चुअल में ये सब वैल्यूज मिल गई। अब मेरे हाथ में मैं कौन सा उठाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? यहाँ पे क्या ले लिया? मैक्सिमम ले लिया। तो जो भी मिनिमम है, मैक्सिमम है मिनिमम में, वो मैंने ले लिया, तो 6। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मैंने उठाया, ठीक है। तो मैक्सिमम जब मैंने उठाया तो मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा मिनीमैक्स, ठीक है। क्या फाइंड करने की कोशिश करूंगा? मिनीमैक्स। तो जब मैं मिनीमैक्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा, मतलब मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम। तो ये सब मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मिनिमम देखो क्या है? 6, करेक्ट, करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं एक्चुअल में? मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि जब एक ने, मतलब अगर ध्यान दो, अगर मिनीमैक्स, ठीक है, मिनीमैक्स किसके इक्वल हो जाता है? मैक्सिमिन के इक्वल हो जाता है। प्लीज ध्यान देना। तो इसको बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैडल पॉइंट, ठीक है, वेर मिनीमैक्स और मैक्सिमिन इज इक्वल टू, ठीक है, ईच अदर, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है। सैडल पॉइंट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इसमें देखने का कौन सी वैल्यू है जो 6 है? प्लीज ध्यान देना, कौन सी वैल्यू 6 है? ये वाली वैल्यू 6 है, करेक्ट है, और ये वाली वैल्यू भी क्या है? 6 है, करेक्ट ना। तो दो स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। कौन सी दो स्ट्रेटेजी है? अगर मैं स्ट्रेटेजी खेलू, कौन सी स्ट्रेटेजी है? देखो B3 और कौन सी है? A2, ठीक है। तो इफ आई प्ले, जस्ट लुक टू व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई प्ले A2 एंड B3, ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन गेट? 6, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, व्हाट कैन हैपन इफ आई प्ले A3, व्हाट विल B2 प्ले? B2 कौन सा प्ले करेगा? सॉरी, बी कौन सा प्ले करेगा? B2। तो A3 और B2 एक और कंडीशन है या नहीं? एक और मैं क्या प्ले कर सकता हूं? A3 या B2। तो फिर भी वैल्यू ऑफ गेम क्या रहेगी? 6। मतलब एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? प्रॉफिट किसका होने वाला? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? प्रॉफिट किसका होने वाला? किसका प्रॉफिट होने वाला? ए का प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके रिस्पेक्ट में था? ए के। अगर सपोज करो ये वैल्यू नेगेटिव आती, मतलब गेम अगर मैं मैक्सिमिन और मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी से खेलता और अगर मेरा आंसर क्या आता? नेगेटिव आता, ठीक है, तो इसका मतलब रहता बी को प्रॉफिट मिलता ए पर। तो मुझे क्या पता चला है? ए इज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 6 यूनिट, 6 यूनिट ऑन बी, ठीक है, सिंपल। बाय प्लेइंग विच स्ट्रेटेजी? आइदर प्लेइंग 2,3 और 3,2, whichever he plays he will get the maximum. Just trust me. Okay, now after this question, this is actually what do? We try to find the saddle point. Now I'll take this question down and I'll try to explain this question to you. Just look at this thing. Okay, ये क्वेश्चन देखना, एक गेम दिया हुआ है, गेम देखो क्या दिया है? गेम दिया है विद सम काइंड ऑफ अ पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया है? ये प्लेयर बी है, एक प्लेयर ए है, देखो इसको 2 रुपीज हो रहा, इसको 6, इसको -2, इसको लैम्बडा। तो वो क्या बोल रहा है? शो दैट जी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, ठीक है, मतलब जी फाइंड होना ही चाहिए, ऐसा ना हो जी फाइंड ना हो। तो सपोज करो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मिनिमम, करेक्ट ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिनिमम और मैं मिनिमम फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मिनिमम क्या रहेगा? 2, और इसमें मिनिमम क्या रहेगा? -2, क्योंकि मुझे पता नहीं है लैम्बडा क्या है। और मैं यहाँ से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम। क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैक्सिमम। तो जब मैं मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूँ तो देखो मैक्सिमम क्या रहेगा? 2, और यहाँ से क्या रहेगा? मैक्सिमम 6। मुझे पता नहीं है लैम्बडा क्या है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से फाइंड किया, यहाँ से मैंने फाइंड किया मिनीमैक्स, ठीक है। तो मिनीमैक्स क्या मिला? देखो मिनीमैक्स मिला मुझे मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम 2, और यहाँ से मैंने फाइंड किया मैक्सिमिन। क्या फाइंड किया मैंने? मैक्सिमिन। तो मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम क्या है? मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम अगेन क्या है? 2। तो अगर ध्यान दो तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई या नहीं? मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनीमैक्स, तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है।
सैडल पॉइंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ रही है 2, और सैडल पॉइंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना, जब भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो गेम को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, याद रखना। If you want to strictly determine the value of the game, then the saddle point should exist. Now what should be the value of this? This is important. Lambda should be less than or equal to 2. If it is equal to 2, it will do. Trust me. If it is equal to 2, just try to put 2 here. Equal to 2 ना, ठीक है? Yes. If you try to put equal to 2, what will happen? देखो यहाँ से क्या select होगा 2, यहाँ से भी क्या select होगा, यहाँ से भी क्या सिलेक्ट होगा 2 सेलेक्ट होगा, मिनिमम क्या रहेगा 2 ही रहेगा। यहाँ से देखो क्या सिलेक्ट होगा 2, यहाँ से देखो क्या सिलेक्ट होगा C, मिनिमैक्स क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो इफ इट इज इक्वल टू 2, दैट विल नॉट हैम्पर माय वैल्यू, द गेम विल बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, करेक्ट। एंड इफ इट इज लेस देन 2, सपोज दिस इज इक्वल टू 1, व्हाट आई एम सेइंग, दिस लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगेन लुक एट दिस वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी वैल्यू 1, करेक्ट। मिनिमैक्स क्या रहेगा, मैक्सिमिन क्या रहेगा 2। सपोज करो तुमने लैम्बडा ले लिया -3, क्या बोल रहा हूं मैं, -3, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, -2 के जगह -3। तब भी जब तुम मैक्सिमिन लोगे तो क्या मिलेगा मैक्सिमिन में, 2 या -3, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम क्या रहेगा, 2 रहेगा, करेक्ट ना। तो आप अगर लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 2 कहीं पे भी चला जाए, ये गेम हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे कंडीशन में वैल्यू ऑफ गेम क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ गेम क्या रहेगी, हमेशा ये वैल्यू ऑफ गेम क्या रहेगी, 2 रहेगी। ओके, इज इट ओके? जस्ट पुट इट इन द चैट इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू आर गेटिंग, जस्ट लेट मी नो इन द चैट व्हाटएवर आई एम सेइंग, इफ यू आर गेटिंग। समझ रहा है? ओके, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप, सिंपल टाइप। Okay, so I'll just take one more question for you so that you understand the things more properly. I would have loved to give you the time to solve, but since we don't have that much time, I'll try to complete it myself, but you can learn it by yourself also. You don't have to worry. Now, find the range of P and Q, which will render the entry 2,2 a saddle point. ठीक है, we want to make the entry 2,2. now look at this 2,2. see, this is 2 second row, sorry second column, and this is second row. तो 2,2 को मुझे क्या बनाना है, सैडल पॉइंट। याद रखना, पहले ही बोल दिया है सैडल पॉइंट किसको बनाना, 2,2 को। तो P और Q की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसका मिनिमम फाइंड करेंगे। यहाँ से मिनिमम फाइंड करेंगे और यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मिनिमम फाइंड करके देखते हैं। मिनिमम क्या रहेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे मुझे क्यों नहीं पता, तो मिनिमम क्या रहेगा 7, और यहाँ पे क्या रहेगा 4, ठीक है। अब मैं इसका मैक्सिमिन निकालता हूँ, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, मैक्सिमिन क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम विल बी 7, करेक्ट। नाउ अब अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम क्या रहेगा 10, यहाँ पे क्या रहेगा 7, यहाँ पे क्या रहेगा 6। अब मैं बोल रहा हूँ मिनीमैक्स, क्या बोल रहा हूँ, मिनीमैक्स। तो मिनीमैक्स क्या रहेगा बता सकते हो आप, मिनीमैक्स, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम कितना रहेगा, करेक्ट ना, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, इफ आई हैव डन इट करेक्टली, या ठीक है। तो मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम क्या हो गया 6, करेक्ट ना। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, इज इट ओके, इज इट ओके, करेक्ट ना। ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं, 17 यानी 16, बेटा इसका मिनिमम निकालो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से क्या बोल रहा है, मैक्सिमम निकालो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ से मिनिमम निकाला और उसका मैक्सिमम निकाला, और यहाँ से मैक्सिमम निकाला और उसका मिनिमम निकाला, ठीक है। तो उसका मिनिमम क्या आया 6। तो अब देखो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, करेक्ट ना। तो अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा और मुझे क्या करना है, 2,2 को सैडल पॉइंट बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पी और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी। अब सिंपल सी चीज देखो, अगर अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू रहती 6, पी की वैल्यू क्या रहती, इफ आई एम नॉट, मैक्सिमम निकालना है ना, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
Let me read the question once again. I think there is someone in the chat. I think that will be the case. क्योंकि इसने बोला है या ठीक है, तो आई थिंक इसने पहले से बोला है द सेडल पॉइंट इज 2,2. सेडल पॉइंट बोल दिया है, सेडल पॉइंट इज गिवन टू बी 2,2. तो सेडल पॉइंट पहले ही बोल दिया है कि 7 है. ठीक है, तो सेडल पॉइंट अगर पहले ही बोल दिया है 7 है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यू की वैल्यू क्या रहनी चाहिए. इंपॉर्टेंट ये है कि क्यू की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 7. क्योंकि अगर सपोज करो क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रहती, ये नहीं फाइंड करना है, ये गलती हो गई मुझसे. यहाँ ये फाइंड नहीं करना है, हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड की. ठीक है, तो इससे क्या पता चला, अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहेगी, प्लीज ध्यान देना, अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहेगी, इसका मतलब क्या रहेगा, मैक्सिमिन में मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम में वो सेलेक्ट हो जाएगा. सपोज करो ना क्यू की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. ठीक है, तो मैक्सिमम जब मैं करूंगा ना मैक्सिमिन, तो मैक्सिमिन में क्यू सेलेक्ट हो जाएगा. करेक्ट. वैसे ही अगर पी की वैल्यू लेस देन 7 रहेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और क्यू पी क्या बोल रहा हूँ, अगर लेस देन इक्वल टू 7 रहेगा, सपोज करो पी है 4, सपोज करो 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर ये 4 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम में मेरा क्या रहेगा, मैक्सिमम मेरा क्या क्या रहेगा, यहाँ पर मैक्सिमम में 7 रहेगा. बट अगर सपोज करो यही वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 7 रहती, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो वाली वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती, सेलेक्ट हो जाती. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, सेलेक्ट हो जाती. अगर यहाँ पर ये वैल्यू 8 रहती तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती. तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम लूंगा, तो ये दोनों जो रहेगा ना, इसको कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पी को क्या रहना पड़ेगा, लेस देन 7, और क्यू को क्या रहना पड़ेगा, ग्रेटर देन 7. जस्ट लेट मी चेक इट वंस अगेन. क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड. I think I mistakenly took it in a wrong way. 1 second. Not an issue. Let me check it once again. This value is going to be minimum and this value is going to be maximum. And the problem is it is already said that this should be my saddle point. So if this needs to be my saddle point, so this is equal to, minimum will be equal to 2. Here the minimum is equal to 7. Okay, if q gets less than equal to 7, it will automatically be selected. Correct. So q should not be less than equal to 7. Okay, so then only I can select 7. Here what I'll do is I will select 4. Okay, so whatever is maximin, what is the maximin now, if q is less than 7, maximin will always be equal to 7. I think there is someone in the chat. Okay, now द नेक्स्ट वे इज मैक्सिमम मैं जब फाइंड कर रहा हूं, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, 10 है. ठीक है, द प्रॉब्लम इज इफ p is greater than equal to 8, just look at this thing, if p is greater than equal to 7, sorry, if p is greater than equal to 7, तो ऑटोमेटिकली p सेलेक्ट हो जाएगा या नहीं, तो मुझे p को सेलेक्ट नहीं करना है. ठीक है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा तो 2,2 जो सेलेक्ट होना है उसके जगह क्या सेलेक्ट हो जाएगा, p सेलेक्ट हो जाएगा.
तो क्योंकि मुझे सेलेक्ट नहीं करना है तो P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है ये? मैक्सिमम में सेलेक्ट हो जाएगा, हाँ सेलेक्ट हो जाएगा, तो नहीं करना है ना सेलेक्ट, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और यहाँ पे तो हो चुकी है बात, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, तो ऑटोमेटिकली या तो 6 रहेगी या तो उससे कम रहेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिलेक्शन क्या रहेगा 6। अब मुझे इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, मिनी मैक्स। क्या सेलेक्ट करना है, मिनी मैक्स। तो अगर मैं मिनी मैक्स सेलेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 7। तो अगर मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो इंपॉर्टेंट क्या है, Q शुड बी लेस देन इक्वल टू 7 and P should be greater than equal to 7. Okay, for 2,2 to be the saddle point. Then I think there is someone who is asking a doubt.